हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम की। तो पहले मैं एक आपको स्टेटमेंट बता दूं। व्हाट इज द थेवेनिन्स थ्योरम? स्टेटमेंट इज एनी लीनियर सर्किट containing several voltage source and resistances can be replaced by just one single voltage source in series with a resistances connected across the load, right? So why we use the Thevenin's theorem? Basically, we use the Thevenin's theorem to find out the current flowing through any load resistance. Okay, तो हम क्या करेंगे? We convert the whole network into one voltage source. हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे. Means this will be our Thevenin resistance, this will be our Thevenin voltage, और हम यहां पर क्या कनेक्ट होगा? हमारा लोड रेजिस्टेंस. दिस इज आवर लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हमने क्या किया? वी कन्वर्ट any linear network which is having a several EMFs and resistances into one voltage source and one resistance in series with this, and then this is known as a Thevenin equivalent network. ये जो नेटवर्क होता है इसको हम क्या बोलते हैं? This is known as Thevenin equivalent. This is Thevenin's equivalent, right? तो इस थेवेनिन थ्योरम्स को जो स्टेटमेंट है इसको ऐसे भी बोला जा सकता है. अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, द करंट फ्लोइंग थ्रू according to Thevenin's theorem, the current flowing through any load resistance current flowing through any load resistance is equal to the Thevenin voltage divided by the Thevenin resistance plus the load resistance, where Thevenin voltage is the voltage after removing the load resistance between those two terminals, and Thevenin resistance is the resistance between those two terminals from where we remove the load resistance and replace the sources with their internal resistances. ठीक है, मतलब हमें क्या करना है? इन शॉर्ट, आपका जो भी नेटवर्क होगा उस नेटवर्क से हम सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे. देन यू विल गेट द टू टर्मिनल्स. कहीं से भी एक रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या? दो टर्मिनल्स मिलेंगे हमें. इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज योर VTH. और टू फाइंड आउट RTH हमें क्या करना होगा? replace all the sources with their internal resistances. ठीक है, so let us take an example. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम to find out the Thevenin equivalent or to find out the current flowing through any load resistance. Suppose these, then we have a resistance here which is the load resistance, right? This is our RL. Suppose this is R1, this is R2, and this is a source we have. Okay, now we have to find out the current flowing through
दिस लोड रेजिस्टेंस, इस लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक, सो द फर्स्ट स्टेप इज remove the load resistance and find the Thevenin voltage between these two terminals। ठीक है, तो अब हम यहां ये दो टर्मिनल्स हैं हमारे, सपोज दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज अ टर्मिनल बी वी है। Remove the load resistance and find the voltage between these two terminals। तो what will be your circuit now? हम एक बार फिर से एक सर्किट को ड्रॉ करेंगे आफ्टर रिमूविंग द लोड रेजिस्टेंस। सो दिस इज आवर R1, ठीक है, ये हमारा R2, दिस इज आवर सोर्स। हमें बाकी किसी चीज के साथ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, अभी लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। तो हमारा लोड रेजिस्टेंस रिमूव हो गया, ए एंड बी दो टर्मिनल्स हमें मिल गए। इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें क्या करना है, अब वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, दैट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, VTH। अब इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सो फॉर दिस नेटवर्क हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक सोर्स लगा हुआ है और एक हमारे पास रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहां पर है। नाउ सपोज वी हैव अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप इज I1। ठीक है, तो यहां पर I1 करंट यदि फ्लो हो रहा है इस लूप में, यहां तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट है, यहां भी कोई करंट नहीं होगा, सो वी हैव अ सिंगल लूप। तो हाउ यू विल फाइंड दिस, you will get I1 is equal to E divided by R1 plus R2। This is the current flowing through these net। Now to find the voltage across these two terminals, A और B के बीच में जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कहां पर होगा, इन दो टर्मिनल्स के बीच में होगा, क्योंकि यहां पर भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगा, यहां पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये नोड और ये नोड सेम पोटेंशियल पर होंगे, वैसे ये नोड और ये नोड सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो इस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कौन सा होगा, आपका VTH होगा। सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस R2, सो दिस वोल्टेज अक्रॉस R2 इज इक्वल टू VTH। तो ये क्या है अपना I1 इंटू R2, V इज इक्वल टू IR से। So what is I1? I1 is E divided by R1 plus R2 into R2। तो ये हमें क्या मिल गया, VTH मिल गया। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टू फाइंड RTH, replace the sources with their internal resistances। ठीक है, internal resistances and remove the load resistance RL and find the voltage find the resistance find the resistance
between these two terminals. ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये नेटवर्क हमारा कैसा हो जाएगा, when you remove the load resistance and replace the sources with their internal resistances. ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इस नेटवर्क के साथ हम क्या करेंगे, अब रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिप्लेस द सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो कहां लगा था लोड रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में, तो हमने उसको रिमूव कर दिया, सोर्सेस को रिप्लेस किया इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब यहां पर आपका सोर्स क्या है, ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। हम सुपरपोजिशन थ्योरम में भी देखा था हमने, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि व्हेन यू वांट टू रिप्लेस द सोर्सेस और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस यदि नहीं दिया गया है तो क्या होगा, तो वोल्टेज सोर्स को यदि आपको रिप्लेस करना है, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है तो आप उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और यदि आपको करंट सोर्स को रिप्लेस करना है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है करंट सोर्स के केस में, तो आप उसको ओपन सर्किट कर देंगे। तो इस केस में क्या है, हमारा वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया, तो हमने इसको क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर। अब हमें क्या करना है, इन दो टर्मिनल्स के बीच में आरटीएच फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इस एंड से देखेंगे, तो जब हम इस एंड पर हमें टर्मिनल वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम कहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे, फार एंड से, यहां वाले एंड से। तो अब जब हम यहां वाले एंड से इसको देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, क्या ये दोनों जो है सीरीज में है क्या, जो करंट यहां से जा रहा है क्या वही करंट यहां जा रहा है क्या, नहीं, यदि ये ओपन सर्किट नहीं होगा, लोड रेजिस्टेंस लगा होगा, तो करंट यहां पर भी चला जाएगा। तो इसलिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 R2 के साथ पैरेलल में है। सो व्हाट इज योर RTH, RTH is R1 in parallel with R2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हमारा हो गया RTH। So for this network, this is not a formula. This is not a formula for the Thevenin theorem. This is the method to find out the VTH and RTH for this particular network. तो अब हमारे पास क्या आ गया, VTH आ गया, अब हमारे पास RTH भी आ गया। तो क्या करेंगे अब हम, now we draw the Thevenin equivalent। ठीक है ना, अब हम Thevenin equivalent ड्रॉ कर सकते हैं because we have a RTH and the VTH। ठीक, तो you take this, this is our RTH, this is our VTH, और ये कहां पर मिला है हमें, A और B के क्रॉस। हमने पूरे नेटवर्क को क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, और वापस हम इसमें क्या करेंगे, वी कनेक्ट द reconnect the load resistance। What we'll do, you reconnect the load resistance। अब यहां पर यदि हम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हुआ,
ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं. नाउ यू अप्लाई सिंपल ओम्स लॉ. So what will be your current flowing through load resistance? IL is equal to VTH divided by RTH plus RL. This is the current flowing through the load resistance by using the Thevenin theorem. एक और चीज यहां पर देखेंगे आप कि हमने पूरा नेटवर्क किस में कन्वर्ट किया, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स में. ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स और एक उसमें कन्वर्ट कर लिया. तो क्या होगा, हम यहां पर यदि इस फॉर्मूला में मैं देखूं तो VTH और RTH विल बी द सेम. सो इफ यू चेंज द लोड रेजिस्टेंस फॉर एनी नेटवर्क, यदि मान लीजिए कि कोई नेटवर्क है जिसमें आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके उसमें करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं खाली, और बाकी पूरा नेटवर्क वैसे ही रहता है, तो हम इस फॉर्मूले में RL की वैल्यूज चेंज कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, so this is the method. And what is the limitation of this? The limitation is this, the जैसे हमने बाकी थ्योरम्स में देखा कि you can find out the current flowing through any branch, but in case of Thevenin's theorem you are able to find out the current flowing through load resistance only. हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस से करंट निकाल सकते हैं, जबकि हम यदि दूसरे सोर्स थ्योरम्स देखें तो उन थ्योरम्स में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ब्रांच से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is the basic method to find out the current flowing through load resistance by using the Thevenin's theorem. Thank you.